Hello all. Today we are going to learn about the heap sort. So before understanding or before going further, we need to be clear about the term heap. Heap, which is a collection of things which are placed one over the other, one over other. It is actually a complete binary tree based data structure. Data structure which is used for efficient implementation of your priority queues. So heaps can be considered in two forms. One is the max heap and the other one is min heap. So we are going to discuss both of them. Fine. So being the complete binary tree based data structure, so let us first of all try to have a tree, construction of a tree out of given n random numbers. Let the numbers be 16, 8, 2, 5, 4, 1, then 20, then 10, and then 12. Let these are the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So n is equal to 9 here. Let us name it as a. So this is a of 1, this is a of 2, this is a of 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Now let us try to have a tree. So first of all 16 is going to act as its root, 8 as its child, then 4 as its child, then 5 the children of 8, child of 8, then again means 4 is twice, means we need to make it 14, then 1, then 20 and then 10 and then 12. So this is how we construct the tree out of given n numbers which were stored in the form of an array. We just try to you can say just make the first element as the roots, second as the left child, third as the right child, and then just try to fill the elements from left to right, from go to left then right, go to left and then right. Okay, so in this way this is going to be a complete binary tree. So just try to observe in this tree the let there be the ith node, then the parent of the node I will be given by which one, I upon 2 and its floor value. So it is going to be the parent of I. Let's take the example, let I be equal to 4, means we need to find the parent of fourth element is this one. Okay, 5, so we need to find the parent of 5. So parent of this I is equal to 4 will be given by 4 upon 2 and its floor value, which is equal to 2. It means the parent of a of 4 is going to be equal to a of 2, or you can say the a of 2 is 8. And just try to look at the tree. Try to look at the tree of our a of 4 is equal to this one. This was our a of 4, so its parent is equal to a of 2. Yes, no. So its parent is equal to 8. Its parent is equal to 8. So we can just have the parent of a node I just by using this expression I upon 2 its floor value. In the same way, we can have the right child of a node I as well as the left node of its left node or the left child of node I. So the left child of node I will be given by 2 into I, while the right child of a node I will be given by
2 into I plus 1. Okay, let us try to just observe it from this tree. Try to keep I as the same, which was equal to 4. It means we need to find the value of the left child of 5 as well as right child of 5. So left child of 4 will be equal to 2 into 4 will be equal to how much? 8. Fine. So the left of 4 will be given by A of 8. Done. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So this is going to be equal to A of 8. This is the A of 8. Done. So it is the left child of 5. And in the same way, the right child of 4 will be equal to 2 into 4 plus 1, which is equal to 9. And this is the ninth element. It means we obtained the left child as well as right child of element number 4, whose value was equal to 5. So just try to remember these terms. Means what we did is we just took a list containing n numbers, then we drew the tree, which is a complete binary tree, and then we defined, then we made the functions of returning the parent of I, then returning the right child of I, then returning the left child of I. The max heap and the min heap. Max heap and min heap. The max heap says that the tree or the heap as drawn above, the heap or the tree or the complete binary tree in which every node I follows the following rule. अब वो rule क्या है? It says that if A of parent of I is always greater than A of I, then we will say that the heap is the max heap. Or in other words, if the parent of the nodes is having the maximum value, means if the root of the node, suppose this one is the root, this is the left child, this is the right child. So it means if left child as well as the right child are having values which are less than the root node, then we say that this follows the property of max heap. The same is represented by this rule. We say that if A of a parent of I, fine, if the parent of I is having the value, having the greater value than the node I itself, then we will say that it is the max heap. And in the second definition, we will say that if this property is like this, that if A of parent of I is having lesser value than A of I itself, then it is going to form our min heap. It is going to form our min heap. And this should be true for all I. For all I, or you can say for all nodes of the complete binary tree. The complete binary tree. Then we will say that our heap is max heap or min heap as per the property it is forming. Fine. So you must be clear about the max heap and min heap. So max heap होगा क्या? जिसमें रूट की वैल्यू हमेशा उसके चिल्ड्रन से बड़ी हो, एंड दिस प्रॉपर्टी शुड बी फॉलोड बाय ईच एंड एवरी नोड. ऐसे ही मिन हीप क्या होगा? जिसमें रूट नोड की वैल्यू उसके लेफ्ट चाइल्ड एज वेल एज उसके राइट चाइल्ड से छोटी हो, एंड दिस प्रॉपर्टी शुड बी फॉलोड बाय ऑल नोड्स प्रेजेंट विद इन द ट्री. सो दीज आर द डेफिनेशंस फॉर योर मैक्स हीप एज वेल एज योर मिन हीप. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. The next part is that how to keep a check upon the min heap and max heap property. So बड़ा simple है कि let us try to start
by a tree having only 3 nodes. Done. Let it be 30 and let it be 40 and let it be 35. So we want to have a check upon whether this is a max heap or node or not. मैक्स हीप नोड और मैक्स हीप ट्री का एक पार्ट है या नहीं. डन. अब कहता है कि 3 नोड्स हैं. लेट इट बी द ith नोड, देन it is going to be the left node, or it is going to be its right child, it is going to be its left child. Left child and right child. I is the root node. तो कहता है now we need to check whether it is following the max heap property or not. If it is following, then it is fine, otherwise we need to adjust it to satisfy the property of max heap. तो अब कहता है करें कैसे इसको. कहता है क्या है कि I है, fine, I is given to you, I is the root, fine, and left it will be given by 2 into I, and its right child will be given by 2 into I plus 1, isn't it? तो कहता है करना क्या है. First of all, make a comparison. Let they all be the part of array A. First of all, make a comparison between your A of I and your A of left. So if this is true, if your left node is having value greater than your root node, then you need to initialize large equal to left, else the value of large is going to be equal to I. Done. It means we just want to have an index of the element which is greater amongst these two elements, in between these two elements, कि ये बड़ा है ये बड़ा है, उसका इंडेक्स किस में जाकर स्टोर होएगा, लार्ज में जाकर स्टोर होएगा. नाउ द लार्ज from the root and from the left child is found. Now we need to compare that large. If A of large was less than A of right, मीन्स अब किस में कंपैरिजन है, इन दोनों में से जो लार्ज था उसमें और जो राइट है इसमें कंपैरिजन है. इसमें कंपेयर किया, कहता है इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इट मीन्स वी नीड टू अपडेट द लार्ज, टू बी इक्वल टू राइट, फाइन. अब इसी एग्जांपल में देख लो, सपोज दिस वाज ट्रू एंड दिस नोड वाज इक्वल टू 55, एज्यूम दिस, फाइन. सो 30 एंड 40 में से लार्ज की वैल्यू कितनी आई निकलकर, लार्ज वाज इक्वल टू हाउ मच, लेफ्ट, और यू कैन से 2i हो गया था लार्ज. ओके. अब कहता है जब मैंने किसको कंपेयर किया, a ऑफ 2i एंड a ऑफ 2i प्लस 1 को कंपेयर किया, तो अब लार्ज किसके इक्वल हो गया, इज इक्वल टू 2i प्लस 1, बिकॉज दिस 55 वाज greater than a of large, which was equal to 40. Fine. So at the end, large is equal to this 2 of I, 2i plus 1. In the next step, we need to compare whether the root node was smaller than the left node or the right node. कि जो root node है, या फिर कहने का मतलब क्या है, all in all, if we have passed this subtree टू चेक फॉर द मैक्स हीप, तो 3 कंडीशंस हो सकती हैं. एक कंडीशन कौन सी की, पहले से मैक्स हीप बनी हो. यदि ये पहले से मैक्स हीप बनी होगी तो कहता है इससे इस दोनों को कंपेयर किया, उसके बाद इस थर्ड से कंपेयर किया, तो ओवरऑल कंपैरिजन के बाद भी जो लार्ज में क्या ही बचना चाहिए, वो आई बचना चाहिए उस केस में. यदि ये पहले से ही हीप थी, मैक्स हीप की फॉर्म पहले से ही थी, तो लार्ज वाज इक्वल टू आई. इट मीन्स वी डू नॉट नीड एनीथिंग टू डू, हमें कुछ नहीं करना उस केस में, जस्ट नो नीड टू डू एनीथिंग. फाइन. कि ऑलरेडी यदि हीप है, फाइन. तो कहता है इफ दिस लार्ज इज नॉट इक्वल टू आई, ओनली देन वी नीड टू डू समथिंग.
और वो समथिंग क्या है, देन वी नीड टू इंटरचेंज. किस किस को इंटरचेंज कर दें, किस किस को इंटरचेंज कर रहे हैं हम, ए ऑफ आई को एंड ए ऑफ लार्ज, दोनों को क्या करें हम इंटरचेंज कर दें. इसका मतलब क्या हो गया कि इस पर तो क्या रखो आप 30 की जगह क्या कर दो 55, और यहाँ पर क्या कर दो इज इक्वल टू 30 कर दो. कहता है अब चेक करो, अब ये क्या करेगी, आपकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है. डन. दिस वाज द केस व्हेन लार्ज वाज नॉट इक्वल टू आई. और इसका दूसरा केस देखो, इफ लार्ज वाज इक्वल टू आई, लार्ज वाज इक्वल टू आई, तो ये केस कब होता, कहता है जब ये वाला कंपैरिजन होता व्हेन वी कंपेयर्ड. सपोज इसका एग्जांपल ले लो कि ये मेरे पास सपोज 50 था, ये मेरे पास 30 है, ये मेरे पास 10 है. अब ये ऑलरेडी मैक्स हीप है, तो कहता है ए ऑफ आई चेक किया, ए ऑफ लेफ्ट से बड़ा नहीं है, ए ऑफ लेफ्ट इज नॉट ग्रेटर देन ए ऑफ आई. इसका मतलब कि ये इफ वाली कंडीशन तो क्या हुई, फॉल्स हुई. डन ना. हमने क्या ये वाला इफ कंडीशन थी ना बेटा, ये इफ कंडीशन है, तो कहता है इफ ये वाली इफ कंडीशन फॉल्स है तो इसमें नहीं जाएगा, इसका मतलब इसके एल्स वाले पार्ट में जाएगा. एल्स मींस लार्ज विल बिकम इक्वल टू आई. यस नो, लार्ज आई हो जाएगा ना यहाँ पर, लार्ज विल बी इक्वल टू आई. अब कहते हैं सेकंड में आ जाओ, इफ ए ऑफ लार्ज इज लेस देन ए ऑफ राइट. ए ऑफ लार्ज में मतलब 50 और 10 के बीच में अब कंपैरिजन किया, तो ये कंडीशन भी क्या है, ये भी फॉल्स है, इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा. तो थर्ड वाली कंडीशन में क्या आ जाएगा कि इफ दिस इज इक्वल टू आई देन डू नथिंग, देन डू नथिंग. तो कहता है ये ओवरऑल में क्या है, एक एल्गोरिथम है, एक प्रोसीजर है टू मेक द 3 नोड ट्री एज अ मैक्स हीप. आप इसकी मिन हीप भी बना सकते हो अकॉर्डिंगली. यदि आप इन कंडीशंस को चेंज कर दोगे देन इट विल बिकम द मिन हीप. Then 40, then 30, then 15, then 25, then 32, 35, then 20, 25, then 16, and then 20. So let it be a tree. Just try to observe the tree. So this node, or you can say this triangle, this one in itself is a max heap. The triangle or the subtree having root 40 is also a max heap. This is also a max heap. This is again a max heap. Now observe this. So the 70 and the nodes below it are all forming the max heap. Fine. Now this is the only exception. Means this root, you can see this node having value equal to 10. This is a violation of the property of max heap. So what we need is, we need, or you can say we want to write an algorithm that takes care of the heaps, or you can say max heap specially, or max or min heaps, max heap or min heaps, which are disturbed only at a single node. कि खाली एक सिंगल नोड ऐसा है जिसकी वजह से वो जो डिस्टर्ब्ड है वो उसको हम मैक्स हीप या मिन हीप नहीं बोल पा रहे. तो कह रहा है इसके लिए अब हमें एक प्रोसीजर वर्कआउट करना है. लेट अस नेम दैट प्रोसीजर एक्स मैक्स हीपिफाई.
मैक्स हीपी फाइव उसको एल्गोरिथम को बोल दो। डन। इसको दो आर्ग्यूमेंट्स पास हुए, वन इज द एरे ए एंड वन इज द वैल्यू ऑफ द node which is disturbed, or you can say index of that. So this is the beginning. Fine. So let it be equal to I, or in this case I is equal to 3, isn't it? So this is index number 1 2 3, then 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15. So n is equal to 15 and the array indices are just written in the green color. Fine. So this heap is disturbed at index number 3, or you can say at this level. So now we need to maintain the property. Now for this maintenance, what it says is, first of all, find the index of the left node, left child of I, which is equal to 2 of I, minus this one, 3 to the 6. Done. So it is the sixth node. And in the same way, find the value of the right child, index of the right child, which will be equal to 2i plus 1. Fine. So these are the indices for the left child as well as the right child. Now go for a check whether, as we did in the last code, last 3 or 4 lines, what we did is that if a of I, if a of I is less than a of left, then this, in this case, we have to do that large will be equal to L, and along with this और क्या करना है, large will be equal to large will be equal to L. This is the end, and under its else we need to do that large will be equal to I itself. The same thing that we did in the code above, in this one बिल्कुल सेम किया. अब कहता है once large is found, then we need to compare if a of large is less than a of right. So in that case, if this condition is true, what we need to do is that large will become equal to R. Fine. Now after this we need to make a comparison between the large and I. So if large is not equal to I, if it is equal to I, then it means the tree was, or you can say heap was already in its desired shape. If it was not equal to I, then we need to interchange. अब interchange किस किस को करें? Interchange which one? A of large and which one? A of किसको करें? A of I. इन दोनों को इंटरचेंज कर दो. तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, कहता है कि I इज इक्वल टू 3 था. डन. I इज इक्वल टू 3 था, तो किसके साथ कॉल हुई, इसको A और 3 के साथ कॉल हुई. अब लेफ्ट में इज इक्वल टू 6 आया, R में इज इक्वल टू 7 आया. डन. नेक्स्ट में क्या हुआ, इसने A ऑफ I मीन्स A ऑफ 3 और A ऑफ किसको कंपेयर किया, A ऑफ 6 को कंपेयर किया. तो 10 और 40 का कंपैरिजन हुआ और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली लार्ज की क्या वैल्यू सेटअप होगी, इज इक्वल टू 6, इस वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग. डन. अब कहता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अब क्या हुआ, 40 और 30 कंपेयर हुआ. डन. इट मीन्स दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो इसमें नहीं गया. इसका मतलब लार्ज की वैल्यू क्या सेट होके आई, इज इक्वल टू 6. यहाँ पर अब कंपेयर हुआ 6 इज इक्वल टू 3 और नॉट. डन. इट इज ट्रू. इसका मतलब वी नीड टू इंटरचेंज. इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने इंटरचेंज कर दी वैल्यूज. तो यहाँ पर क्या आ गया, अब 40, यहाँ पर आया 40
ओके, यहाँ पर आया 40 और यहाँ पर आया इज इक्वल टू 10, यहाँ पर आया इज इक्वल टू 10 क्योंकि ये लार्ज था। ओके, तो कहता है इस स्टेटमेंट ने क्या किया, इनको इंटरचेंज कर दिया। अब कहता है जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व वेरी कीनली। अब कहता है कि ये वाला एलिमेंट तो सेटल हो गया, लेकिन अब क्या हुई, इसकी प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगी। इसकी, और ये है क्या, ये वैल्यू अभी अभी हमने क्या फाइंड आउट की, लार्ज। ये क्या है, लार्ज। इट मीन्स क्या है कि अब हमें इस पर फिर दोबारा से रिकर्सिवली सेम एल्गोरिथम कॉल करना है। जब भी इंटरचेंज हुआ तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मैक्स हीपीफाई एल्गोरिथम फिर से दोबारा कॉल कर लो रिकर्सिवली। और आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, दो, ए और लार्ज। ए और लार्ज के साथ फिर अब कॉल किया। अब कहता है कि जब ए और लार्ज के साथ इसने कॉल, एंड दिस इज गोइंग टू बी द एंड। अब कहता है ये हीपीफाई के मैक्स हीपीफाई के लिए कॉल हुई किस, कौन से दो आर्ग्यूमेंट्स के साथ, ए और लार्ज। लार्ज मीन्स 6, तो इन दो आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल हुई। अब कहता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेफ्ट की वैल्यू निकली 12। इट मीन्स ये क्या हुआ, इसका लेफ्ट चाइल्ड है। और इसके साथ साथ राइट चाइल्ड 2i+1, इसका मतलब ये क्या है, इसका राइट चाइल्ड है विच इज इक्वल टू 13। डन। तो कहता है ये वाली एग्जीक्यूट होगी स्टेटमेंट, ये एग्जीक्यूट होगी। अब कहता है इस कंडीशन को चेक करो। इस कंडीशन में क्या हुआ, बिकॉज 10 इज लेस देन 20, इट मीन्स लार्ज इज गोइंग टू बिकम इक्वल टू 12 एज अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इफ कंडीशन। डन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इफ कंडीशन। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, बिकॉज a of large, or you can say this 20 was further less than 25, it means we need to upgrade, we need to update large further to be equal to 13। इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग लार्ज क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 13। डन। देन वी नीड टू मेक ए कंपैरिजन if 13 was equal to 6 or not, it was not, it means we need to do an interchange। अब इंटरचेंज कर लो। इंटरचेंज किस किस का करें, किस किस का इंटरचेंज करो, किस किस वैल्यू को, ए ऑफ 6 मीन्स चेंज किसका होना है, ए ऑफ लार्ज और ए ऑफ आई का। डन। ए ऑफ आई में क्या पड़ा था 10 और ए ऑफ लार्ज में क्या पड़ा 25, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। तो इंटरचेंज करने के बाद आएगा क्या निकल कर बेटे, तो यहाँ पर क्या कर दो, इज इक्वल टू 25। डन। और यहाँ पर क्या कर दो, इज इक्वल टू 10, इजंट इट। तो कहता है अब की बार भी क्या हुआ कि ये वाली जो डिस्टर्ब नोड था फिर से सेटल डाउन हो गया। ओके, दे फॉल इन द बाउंड्स ऑफ द एरे। ऐसे ही कहता है यहां पर भी क्या करो, एरे के बाउंड वाली और कंडीशन लगा लो। एरे के बाउंड्स वाली एक कंडीशन ऐड कर लो इस इफ कंडीशन के साथ। इफ ए एंड आई, ए एंड इफ आई एंड एल और आई एंड आर बोथ आर इन द रेंज ऑफ द एरे। जैसे कि ये क्या हुआ कि आउट ऑफ रेंज चला गया, ये आउट ऑफ द रेंज चला गया, इसका मतलब इस वाले केस में रिकर्सिव कॉल होगी नहीं। यदि रिकर्सिव कॉल हुई भी तो ये उससे आगे नहीं बढ़ेगा, नेक्स्ट वाले में नहीं होगी, क्योंकि यदि ये भी उसमें नहीं गया अंदर, ये भी नेक्स्ट में नहीं गया, इसका मतलब क्या हुआ कि लार्ज कुछ निकलेगा ही नहीं, या फिर यहाँ पर वो आएगा ही नहीं। यस नो। तो कहता है इट मीन्स रिकर्जन विल एंड देयर, एक बार जब एरे से आउट ऑफ बाउंड चला जाए। तो कहता है ये बेटे ओवरऑल प्रोसीजर है मैक्स हीपीफाई। मैक्स हीपीफाई ने ओवरऑल में किया क्या है, इसने एक मैक्स हीप ली थी जो कि एक नोड से, सिंगल नोड से डिस्टर्ब थी, और उसके उसने क्या किया, एक मैक्स हीप में उसकी जो डिस्टर्ब वाला नोड था उसको उसने सेटल डाउन करके मैक्स हीप जनरेट करके दी पूरे ट्री के लिए। अब कहता है नाउ वी नीड टू यूटिलाइज दिस एल्गोरिथम फॉर क्रिएटिंग द मैक्स हीप आउट ऑफ गिवन n रैंडम नंबर्स। कहता है n रैंडम नंबर से मुझे एक मैक्स हीप या फिर मिन हीप जनरेट करना है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द कॉम्प्लेक्सिटी of our max heap algorithm कि max heap algorithm की complexity कितनी होनी है। सो complexity analysis करने से पहले देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कि let this be the heap and this was disturbed at this node, so max heap will be called using two arguments, one is a and one is 3।
because this was at index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 50. So n was equal to 15 in this case. So because it was disturbed at this node and it is having index equal to 3, so कहता है यहाँ पर कॉल होगी. अब कहता है कि जब मैं इस पर मैक्स CP5 कॉल करूँगा तो ये क्या करेगा 23 और इसमें दोनों में इंटरचेंज होगा. अब इंटरचेंज होगा, इट विल बिकम 23, इट विल बिकम इक्वल टू 5. अब कहता है कि यहाँ तक तो हीप बन गई, अब ये यहाँ पर डिस्टर्ब होगी. अब कहता है जब यहाँ पर डिस्टर्ब हुई तो इसमें और इसमें इंटरचेंज होगा, फिर से मैक्स CP5 की कॉल होगी और इसमें इंटरचेंज होगा, तो इट विल बिकम इक्वल टू 13 एंड इट विल बिकम इक्वल टू 5. सो दिस इज गोइंग टू बी द प्रोसीजर that is to be followed by max CP5 algorithm. अब कहता है कि suppose this is the level at height equal to 0, ये height equal to 1, ये height equal to 2, ये height equal to 3. सिंपल कंसेप्ट है height of the tree. इसकी हाइट 0 है, जितने भी नोड्स हैं इस वाले लेवल पर उनकी सबकी हाइट 0, इस वाले जो लेवल पर है उनकी हाइट इक्वल टू 1, उनकी इसके नोड पर जिनकी हाइट इक्वल टू 2, इस पर नोड इसकी हाइट 3. तो जो अब कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करें इसकी, कहता है कि कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच और यू कैन से ऑफ द ऑर्डर ऑफ हाइट ऑफ अ नोड. अब कहता है इस वाले जो नोड की इस वाले लेवल के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजंस कितने हो सकते हैं, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ EP5 की मैक्स EP5 की कॉल किसके लिए होंगी, एक 1 कॉल 2 कॉल और यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा. इट मीन्स 2 नंबर ऑफ कंपैरिजंस आर नीडेड. Fine. So the complexity of the max EP5 for a node I which was at height equal to h will be of the order of h. Fine. Now we should know the number of nodes present at height h. कहता है कि ये जो हाइट h है, जैसे इस वाले में 1 2 3 4 नोड्स प्रेजेंट है, कितनी हाइट पर 1 पर, ऐसे ही 1 और 2 नोड्स प्रेजेंट है, हाइट इज इक्वल टू 2 पर. देन 1 नोड प्रेजेंट है, हाइट इज इक्वल टू 3 पर. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नोड्स प्रेजेंट है, हाइट इक्वल टू 0. तो कहता है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है. वो रिलेशनशिप क्या कहती है, दैट नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट एट हाइट h will be equal to n upon 2 raised to the power h plus 1 and its ceiling value. ठीक है. now try to just verify it for this tree. अब कहता है कि ये वाला ले लो हाइट इज इक्वल टू 0. तो जब हाइट इज इक्वल टू 0 वी नो n इज इक्वल टू 15 है. इस केस में इस फॉर्मूला में पुट करो कि हमें इस वाले लेवल पर चाहिए, इस वाली हाइट पर नंबर ऑफ नोड चाहिए कितने हैं. तो n इज इक्वल टू 15, 2 raised to the power h is equal to 0 and 1 its सीलिंग वैल्यू तो कितनी हो जानी है 15 अपॉन कितना 2 कितना हो जाना है इज इक्वल टू 7.5. इसकी सीलिंग वैल्यू इज इक्वल टू 8 विच इज टू 1 2 3 4 5 6 7 and 8. सो 8 नंबर ऑफ नोड्स आर प्रेजेंट एट हाइट इक्वल टू 0. कहता है वेरीफाई कर लो व्हेन h इज इक्वल टू 1. इसको वेरीफाई कर लो. जब h इज इक्वल टू 1 था तो उस केस में क्या होगा बताओ. h is equal to means 15 upon 2 raised to the power 1 plus 1 its ceiling value तो कितनी हो जानी है 15 upon 4 its ceiling value कितनी हो जानी है बताओ कितनी 3 point something. इसकी ceiling value कितनी हो जानी है is equal to 4. yes no. so this is the relationship for the number of nodes present at height equal to h. now our next task is to create a max heap from scratch or from the very beginning for n random numbers. कहते हैं n random numbers के लिए मुझे एक max heap जनरेट करनी है and let those random numbers are 5 1 6 3 10 9 and 8. let these be the random numbers. okay, first of all create a general complete binary tree. then the 5 is going to act as root, then 1, then 6, then 3, then 10 and then 9 and then there will be 8. fine.
So this is going to be the general complete binary tree corresponding to this array of random numbers. Fine. So we are going to write an algorithm that is called the build heap. Build heap, and two arguments are going to be passed. One is a, one is n. This be the beginning, this be the end. And now for within this algorithm we need to run a loop for I is equal to n upon 2, its floor value, and down to 1 we need to run. And what exactly we are going to do is that we have to make a call to max cp5 that we wrote just above, जो अभी अभी हमने लिखा था मैक्स cp5, जो ये वाला जो हमने एल्गोरिथम लिखा था अभी अभी, कहता है इसको कॉल कर लेना हमें इस एल्गोरिथम। तो जस्ट मेक ए कॉल टू दिस with argument which are a and I. Done. So this is the algorithm for creating the heap from very beginning. Now let us try to trace it. So here n is equal to, for this tree, n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So n was equal to 7. Done. So a and 7 are passed to this. Fine. a और 7 दोनों पास किए। अब कहता है लूप कहाँ तक चला, फॉर i is equal to n upon 2 means 3.5 means 3 down to 1 loop चला। Okay, now initially I will become equal to 3. जब ये 3 के साथ होगा then a call to the max cp5 will be made with arguments। कौन कौन से arguments, a and 3। it means क्या होगा कि ये वाला जो नोड है इसको वो चेक करेगा कि इस वाले नोड तक मैक्सिमम जो मैक्स हीप है उसकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है, इसको चेक करेगा। कहता है जब इस पे मैक्स हीप लगा तो इसने क्या बोला, इसको इससे कंपेयर किया, डन, लार्ज मॉडिफाई होगा, फिर इसको इससे कंपेयर करेगा, फिर लार्ज मॉडिफाई नहीं। इट मीन्स एट द एंड ऑफ मैक्स सी पी फाइव क्या चेंज होगा कि यहाँ पर 9 आएगा, ओके, और यहाँ पर 6 आएगा, डन। और उसके बाद जब वो नीचे जाने लगा तो उसके बाद क्या हुआ, एरे बाउंड के कारण वो और आगे की रिकर्सिव कॉल नहीं हुई एंड इट रिटर्न बैक। तो i इज इक्वल टू 3 के लिए इसने क्या किया, ये वाली ब्रांच है इसको क्या कर दिया इसने, मैक्स सीपीफाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट में क्या होगा, फिर i इज इक्वल टू 2 होगा, तो इसका मतलब मैक्स सीपीफाई फिर से कॉल होगा, किस किस के साथ, a और 2 के साथ। तो अब की बार कहता है इस वाले नोड को देखेगा वो, डन। तो इस वाले नोड को देखा तो इसको मैक्स सीपीफाई करेगा वो, इसको मैक्स सीपीफाई करने लगा तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, इज इक्वल टू 1 आ गया, एज अकॉर्डिंग टू मैक्स हीप फंक्शनैलिटी। फाइन, तो कहता है ये दोनों हीप बन गई, ये वाला जो लेवल है या फिर जो हाइट इज इक्वल टू 1 है, h इज इक्वल टू 1 है, वो क्या हुआ, उसके लेवल तक की मैक्स हीप्स मेरी जनरेट होगी। अब कहता है नेक्स्ट में क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 होगा, कहता अब वो इस वाले नोड को पकड़ेगा। फाइन, इज इट ओके, कहता इस वाले नोड को पकड़ेगा। अब जब इस वाले नोड को इसने पकड़ा, इस वाले नोड को देखा, तो क्या किया इसने, सबसे पहले इसके लेफ्ट से कंपेयर किया, तो लार्ज की वैल्यू क्या होगी 2, इसका मतलब ये इससे बड़ा है। उसके बाद कहता है इस 10 को इससे कंपेयर करेगा, कहता है कोई इसमें कोई लार्ज की वैल्यू चेंज नहीं है, तो इसका मतलब क्या करेगा, इसको और इसको क्या करेगा, इंटरचेंज कर देगा। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 5, ठीक है। अब कहता है कि ये वाला तो हीप बन गया, इस वाले नोड पर तो हीप की प्रॉपर्टी फुलफिल्ड है, लेकिन कहता है यहाँ पर डिस्टर्ब होगी अब। तो कहता है अब फिर से क्या करो, इसके साथ, इस 5 के साथ फिर से मैक्स सीपीफाई कॉल कर लो। जब इसने फिर से मैक्स सीपीफाई कॉल किया तो अब की बार पहले इससे कंपेयर किया, कहता है नो चेंज, फिर इससे कंपेयर किया नो चेंज, इट मीन्स ये तो ऑलरेडी मैक्स सीपीफाई है। ओके, तो कहता है आफ्टर 3 आइट्रेशंस, और यू कैन से आफ्टर दिस लूप, और हीप विल बी लाइक दिस, और ट्री विल बी लाइक दिस। तो क्या ट्री रहने वाला है, 10, 5, 9, 3, 1, 6 एंड 8, जो अपने आप में क्या है, एक मैक्स हीप। So this is the way how we generate the max heap or the min heap using this algorithm. Fine. Okay, now let us discuss the complexity. Complexity of build heap.
ये जो हमने अभी अभी एल्गोरिथम लिखा है दिस वन, इसकी कहता है कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, इसको डिस्कस करते हैं। कहता है इसको डिस्कस करने के लिए इस ट्री को लेट अस ट्राई टू बी मोर कॉम्प्लेक्स। कहता है एक ट्री एज्यूम करो कि इस तरीके से कोई ट्री था, काफी सारे एलिमेंट्स थे उसके। डन, उसके काफी सारे एलिमेंट्स। अब कहता है कि ये हाइट हर एक, ये हाइट इज इक्वल टू 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। Now we know that max CP5 at this level is going to take big of h, or you can say of the order of its height big of h यहाँ पर लेगा। ऐसे ही big of h हर एक नोड के लिए, सपोज ये डिस्टर्ब्ड है तो इसके लिए टाइम कितना big of h, ये डिस्टर्ब्ड है इसके लिए टाइम कितना big of h। इन जनरल सपोज मैं कहता है ये वाला इंटरमीडिएट लेवल कंसिडर करता हूँ, ये वाला लेवल ओके। तो कहता है इसके जितने, इस पर टाइम कितना लगने वाला है, जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इनटू जितना टाइम एक नोड को, जितना टाइम उस पर मैक्स सीपी5 कॉल करने के लिए लगता है, वो वाला टाइम कितना है, बिग ऑफ एच। इज दैट क्लियर? कहता है कि हमारे पास ये कंप्लीट बाइनरी ट्री था। अब कहता है कि जब ये चला बिल्ड हीप, तो इसने n/2 जो हाफ नंबर ऑफ नोड्स हैं, मतलब क्या होगा कि वो यहाँ से शुरू करेगा, इस वाले नोड से शुरू करेगा, बिल्कुल इस वाले से, सेकंड लास्ट लेवल से, या हाइट इज इक्वल टू 1 से शुरू करेगा। डन। कहता है यहाँ से जब ये शुरू करेगा तो कहता है इसका जो टाइम है दैट इज इक्वल टू, और यू कैन से दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स हाइट। जितनी इसकी हाइट होगी एक नोड के लिए टाइम इसके इक्वल है। जैसे इसके लिए ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 लगना है, इसके लिए भी 1 लगना है, इसके लिए भी 1, सब के लिए 1 लगना है। तो ओवरऑल में क्या हुआ, एक नोड के लिए बिग ऑफ एच टाइम लग रहा है। और अब हमें ये पता है कि इस वाले एक पर्टिकुलर हाइट एच पर जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट है वो कितने हैं, नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट एट हाइट एच वो कितना है, जो मैंने अभी भी निकाला है वो ये है n/2⁻h+1। ये इतने नोड्स हैं ओके। सो कहता है एक पर्टिकुलर लेवल पे टाइम कितने लगने वाला है, टोटल टाइम कितने लगने वाला है, n/2⁻h+1 मल्टीप्लाइड बाई बिग ऑफ h, isn't it? कहता है एक पर्टिकुलर लेवल पे इतना टाइम है। अब कहता है टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, सोच कर बताओ, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, log n/2, isn't it? इसका मतलब हमें क्या है, जो इसका टोटल टाइम निकालना है हमें क्या करना पड़ेगा, h इज इक्वल टू 1 to log n/2, यहाँ तक इसकी समेशन करनी पड़ेगी। डन। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि एक पर्टिकुलर नोड पर जो टाइम टेकन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और डायरेक्टली गिवन बाय बिग ओ ऑफ एच। अब कहता है इस पूरे लेवल्स का, पूरे के पूरे इस वाले लेवल का टाइम टेकन कितना है, इसके टोटल नंबर ऑफ नोड्स को बिग ऑफ एच से मल्टीप्लाई कर दो। टोटल नंबर ऑफ नोड्स वो हमें इस वाले फॉर्मूला से हमने अभी भी वेरीफाई किया था, तो ये टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं, हर एक नोड को मैक्स सिटीफाई करने का टाइम है बिग ऑफ एच। तो कहता है ये इस लेवल को डिनोट करता है, लेकिन हमें तो ये वाले भी चाहिए, ये वाले भी चाहिए, ये वाले भी चाहिए, तो हमें तो इंडिविजुअल लेवल चाहिए। अब कहता है जो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हैं वो मेरे पास log n है, इसका मतलब इन सभी का सम प्लस इन सभी का सम प्लस इनका सम प्लस इनका सम, वो कहता है इज इक्वल टू इसके आए ओके। अब इसको कहता है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या आ जाना है, n और किसके इक्वल आ जाना है, h/2⁻h+1। डन। ऑलमोस्ट इसके आ जाना है, h इज इक्वल टू 1 to log ऑफ n। अब कहता है इस टर्म को थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व करो, ट्राई टू ऑब्जर्व दिस टर्म इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन लेस देन 1। देख लो, h को 2 मान लो तो 2/2⁻2+1, h को 3 मान लो, h को 5 मान लो, h को 7 मान लो,
In all the cases this term is going to be less than 1. So we can say that this whole term is going to be less than or equal to n, isn't it? So in this case c will become equal to 1. Fine. Or in turn we can say that its complexity is going to be of the order of big O of n. So the build heap is going to take लीनियर टाइम. इसका मतलब क्या है कि मेरे पास सपोज कोई n रैंडम नंबर्स है 2, 15, 1, 6, 18, 20, 25, 100, 50. तो कहता है मेरे पास जो n रैंडम नंबर्स हैं मैं उन रैंडम नंबर से एक अपनी मैक्स हीप जनरेट कर सकता हूँ, वो भी कितने टाइम में, ऑफ द टाइम विच इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ n. सो दिस इज द कंक्लूजन टिल टाइम. Now let's move to the last part, that is the heap sort part of it. Heap sort says that if we are having these numbers of or any numbers, then first of all create a max heap. तो max heap एक create किया, suppose थोड़े कम number ले लेते हैं. Let the max heap will is 60, then 30, then 40, then 20, then 5, then 10, then 25. सपोज ये कोई मैक्स हीप थी. तो कहते हैं हीप सॉर्ट का फंडा बड़ा सिंपल है. कहते हैं सबसे पहले क्या करो, ए ऑफ 1 और जो ए ऑफ n है उसको क्या करो, इंटरचेंज कर दो. इट मीन्स कि यहाँ पर क्या आ जाएगा अब आपका 25, और यहाँ पर क्या, यहाँ पर बाकी सेम रहेंगे 30 एंड 40, 20 एंड 5 एंड 10. अब कहता है जो लास्ट वाला जो नोड था, या जो अभी आपने इंटरचेंज किया, ये वाला जो नोड था, ये अभी जो इंटरचेंज होके आया 60, कहता है अब इसको फिक्स कर दो. इसका मतलब अभी जो आपका हीप है, हीप की लेंथ 1 से कम कर दी. मतलब अब की पहले जो लेंथ की थी 1 2 3 4 5 6 7, 1 to 7 थे एलिमेंट्स, अब आपके पास कितने हैं, 1 to 6 एलिमेंट्स. ओके, इसको रेस से बाहर निकालो. ओके, अब कहता है नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, अब इसके साथ मैक्स CP5 कॉल करो. मैक्स CP5 कॉल करो ए और 1 के साथ. इसका मतलब क्या करेगा, क्योंकि हीप की प्रॉपर्टी यहाँ से डिस्टर्ब हुई, अब ये इसको इससे कंपेयर करेगा, फिर इससे कंपेयर करेगा, तो क्या करना है, इसको 25 को यहाँ ले आएगा और 40 को यहाँ पर ले आएगा. ओके, इसकी वजह से कहता है ये डिस्टर्ब हो गया, तो इसको डिस्टर्ब को नीचे फिर से मैक्स CP5 कॉल करो. और अब ये इसने देखा कि 10 तो ऑलरेडी इससे छोटा है और ये तो है ही नहीं कंपटीशन में. इसका मतलब अब ये फिर से मैक्स हीप है. अब कहता है मैक्स हीप पर फिर दोबारा से क्या करो, जो ए ऑफ 1 और ए ऑफ लास्ट, अब ये वाला ए ऑफ लास्ट है, ये ए ऑफ 1 है, फिर से इनको इंटरचेंज कर दो. इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया 25, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या है 40 था. हाँ, यहाँ पर 40 था और यहाँ पर 10 था. तो यहाँ पर क्या आ जाना है, 40 आ जाना है, और यहाँ पर क्या आ जाना है, 10 आ जाना है. डन. तो अब नेक्स्ट में क्या करना है कि अब इस वाले को एलिमेंट को फिक्स कर दो. डन. इसको एलिमेंट को फिक्स कर दो. तो नई वाली हीप क्या बनेगी अभी आपकी, 10, 30, 25, 20 और 5. ये वाले तो दोनों जो एलिमेंट्स हैं इनको तो रहने दो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने फिक्स कर दिए हैं. डन. ठीक है. तो फिक्स सेल वाले एलिमेंट्स को सपोज हम दिखाते हैं इससे, रेक्टेंगुलर नोड से दिखाते हैं. तो 60. ओके, तो अब फिर से क्या कहता है, इस वाले फिर मैक्स CP5 कॉल करो. मैक्स CP5 ए ऑफ 1 फिर से कॉल करो. अब की बार ये इससे कंपेयर हुआ तो क्या आ जाना है, यहाँ पर 35 आ जाना है, और यहाँ पर क्या आ जाना है, 10 आ जाना है. अब 10 फिर नीचे कंपेयर होगा तो यहाँ पर 20 आ जाना है, और यहाँ पर क्या आ जाना है, 10 आ जाना है. Isn't it? Yes, no? तो ये वाली नई हीप बन गई. नई हीप क्या बन के आई कि 35 यहाँ पर आ गया. ओके, और उसके बाद 20 यहाँ पर आया, 25 मेरा यहाँ पर आया, उसके बाद 10 यहाँ पर आया, 5 यहाँ पर आया, और ये वाले जो दो एलिमेंट्स थे 40 और 60 ये तो ऑलरेडी सेटल्ड थे. अब क्या करो, फिर से इसको और इसको इंटरचेंज कर दो, सॉरी इसको और इसको, तो यहाँ पर 35 आ जाएगा और यहाँ पर 5 रह जाएगा. डन. और इसको भी अब क्या डाल दो, फिक्स की लिस्ट में डाल दो.
अब जो नई वाली जो हीप बनेगी वो क्या बनेगी, 5 देन 20 देन 25 देन 10, और ये वाले जो एलिमेंट्स है 35 ये तो फिक्स्ड है, 40 और ये क्या 60, ये वाले एलिमेंट्स तो फिक्स्ड है। ओके, तो अब की बार क्या करना है कि ये वाला जो 5 है फिर इस पर मैक्स सीपी कॉल कर दो इस पर। तो जब इस पर मैक्स सीपी कॉल करेंगे तो यहाँ पर ये इंटरचेंज होगा, 25 यहाँ पर आएगा और 5 यहाँ पर आएगा। डन। अब इसके नीचे तो कोई है ही नहीं है, तो कहता है यही बनेगा। ओके, तो कहता है इसको क्या करो, अब ए ऑफ 1 को और लास्ट एलिमेंट को फिर से इंटरचेंज कर दो, तो यहाँ पर 10 आ जाना है और यहाँ पर 25 आ जाना है। ओके, यहाँ पर 10 आ जाना है और यहाँ पर 25 आ जाना है, तो इसको भी फिक्स कर दो। अब कहता है कितने एलिमेंट्स बचे, ये 3 एलिमेंट्स बचे, कौन से, 10 20 और 5। इस पर कहता है फिर से मैक्स सीपी कॉल कर दो। मैक्स सीपी कॉल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 25 10 और 5। ओके, तो क्या करेंगे, इसको अब इंटरचेंज कर देंगे। डन। तो क्या बनेगा, 5 और 10 और नेक्स्ट में ये जो 25 है ये तो फिक्स हो जाएगा, 10 है सॉरी, यहाँ पर 10 है ना और ये 20 है, ये 10 है और ये 20 है, तो इस तरीके से कहते हैं ये 20 यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। अब की बार कहता है कितने बचे, 5 और 10, फिर से मैक्स सीपी कॉल करो तो 10 और 5 बन जाएगा, फिर से क्या करेगा, इंटरचेंज कर देगा यहाँ पर, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 10 फिक्स हो जाएगा। और कहता है लास्ट में जो सिंगल एलिमेंट बचेगा उसको तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो अब कहता है लिस्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, 60 40 35 देन 25, उसके बाद क्या गया, देन 20, उसके बाद क्या गया 10, उसके बाद 5, तो लिस्ट आपकी सॉर्ट होके आ गई। इसी ऑर्डर में उसको लिखना शुरू कर दो। ओके, तो सबसे लास्ट में 60 था आया था, फिर 40 आया था, फिर 35 आया था, 25 आया था, उसके बाद क्या आया, 20 आया, नेक्स्ट में कितना आया, 10 आया और नेक्स्ट में 5। तो कहता है ये आपकी सॉर्टेड लिस्ट है। दिस इज हाउ द हीप सॉर्ट वर्क्स। फाइन। अब कहता है नाउ वी नीड टू राइट द एल्गोरिथम फॉर दिस होल प्रोसेस। एल्गोरिथम इज वेरी सिंपल, सो लेट अस ट्राई टू राइट द एल्गोरिथम फॉर दिस। एल्गोरिथम क्या कहता है, कहता है हीप सॉर्ट, दो आर्ग्यूमेंट पास हुए ए एंड एन। तो पहला जो काम है वो क्या करना है, बिल्ड हीप जो हमने बनाई थी, बिल्ड हीप बनाई थी ना पहले, हमें रैंडम नंबर से एक मैक्स हीप जनरेट करनी पड़ेगी और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी किस ऑर्डर की थी, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन थी, वो हमने देख ली थी। ओके, उसके बाद क्या कहता है, फॉर आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द एरे, लेंथ और यू कैन से लिस्ट की जो लेंथ है, और कहाँ तक चलना है, डाउन टू 2 चलना है। डाउन टू 2 क्यों, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट बचेगा वो तो अपने आप में ही सॉर्टेड है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इंटरचेंज कर दो किस किस को, ए ऑफ 1 को और किसको, बोलो, ए ऑफ आई को, नहीं ए ऑफ 1 और ए ऑफ आई को नहीं, हाँ ए ऑफ 1 और ए ऑफ आई को क्या करो, इंटरचेंज कर दो। कहने का मतलब क्या है, जो आपने अभी भी मैक्स हीप बनाई है, ये बनाई थी ना अभी आपने, तो कहता है ये ए ऑफ 1 है और हमने आई यहाँ से शुरू किया है, ठीक है, आई हमने क्या किया, लेंथ ऑफ ए से शुरू किया ना, लेंथ ऑफ ए एन है, तो कहता है इन दोनों का क्या करो, इंटरचेंज कर दो। कहता है इंटरचेंज करने के बाद क्या करो अब, कि जो हीप का जो साइज है, हीप साइज इज इक्वल टू, कहता है जो पुराना हीप साइज था उससे 1 माइनस कर दो, क्योंकि अब नेक्स्ट वाले राउंड में हमें इसको ड्रॉप कर देना, इस वाले नोड को, कि ये ऑलरेडी फिक्स हो गया, इसको टच नहीं करना। तो उसको टच ना करने के लिए क्या करो, हीप साइज बिकम्स इक्वल टू हीप साइज माइनस 1। और उसके बाद क्या करना है, कहता है जस्ट मेक ए कॉल टू मैक्स सीपी। मैक्स सीपी को किसके साथ कॉल करना है, ए और 1 के साथ कॉल करना है, एंड दिस इज द एंड ऑफ दैट। बिल्कुल बेटा हमने सेम काम किया कि बिल्ड हीप बना ली, लेंथ 2 हमें ट्रेवर्स करना है। हमने क्या किया, जो मैक्सिमम एलिमेंट यहाँ पड़ा था और जो लास्ट एलिमेंट पड़ा था उनको इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद लिस्ट का साइज 1 से कम कर दिया। उसके बाद क्या किया, क्योंकि ये जब इंटरचेंज हुए दोनों तो हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगी, है ना, उस डिस्टर्बेंस को रिमूव करने के लिए इस पर फिर से क्या कॉल किया, मैक्स सीपी को कॉल किया। डन।
तो फिर से क्या करेगा वो, इन एलिमेंट्स की हीप बनाएगा, फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो आएगा एलिमेंट यहाँ पर टॉप पर उसको और इसको इंटरचेंज कर देंगे और फिर से हीप साइज एक कम कर देंगे एंड सो ऑन. इन दिस वे द लिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्स विल गेट सॉर्टेड. फाइन. नाउ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द हीप सॉर्ट. कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होनी है हीप सॉर्ट की. अब यहाँ पर लिखा है कि बिल्ड हीप की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन. एक हमने लूप चलाया ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स. डन, isn't it? ओके, ये लूप चलाया फॉर एन टाइम्स. इसका टाइम कितना आना है, बिग ऑफ एन, एंड विद इन दिस लूप हमने मैक्स हीपीफाई को कॉल किया. अब जो मैक्स हीपीफाई है इसका अपने आप में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कितनी है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ लॉग एन है. देखो ना, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उसकी, ऑफ द ऑर्डर ऑफ लॉग एन है. तो कहता है इन दोनों को कंसिडर करके, क्योंकि ये इसका एक नेस्टेड लूप है, टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जानी है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जानी है. सो दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फॉर योर हीप सॉर्ट एल्गोरिथम.